Okay, good morning, children. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, everybody. I am not telling to few. Good morning, Sahin, Good Sakcham, morning, sir. Ria. Okay, good morning. So, today is a very fine morning, Monday. A very good, interesting day for me. And this fine day, I am going to start a very fine lesson. Okay, and that is what is the lesson? Anybody guess? इंडियन इकोनॉमिक्स का कौन सा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं हम? वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको? इज इट विजिबल टू यू? बोलिए. No, sir. No. Okay. And the lesson is very good lesson. Very good. Next lesson, you know very much. That is environment and sustainable development. Okay. This is important lesson in the sense that the whole of the human race is surviving if the environment is survived, or it will survive if the environment is survived. Okay. And this is very important in that sense कि हम पूरे विश्व को जो देख रहे हैं, जिस रूप में हम देख रहे हैं, ओके, वो विश्व उस रूप में दिखाई तब देगा, इससे अच्छे रूप में दिखाई तब देगा जब हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें. तो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एनवायरनमेंट? आपके दिमाग में कि आनी चाहिए एक बात कि एनवायरनमेंट है क्या. ओके. और व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस, पहला पॉइंट है कि हम इसको, इस लेसन, why this lesson has been included. I always believe that we must start the topic in that scenario, that perspective. What is the relevance of this lesson? And in my view, this relevance is that we are the part of the environment, and our survival very much depends on environment survival. Today, we are living in the city of Delhi, and here we are facing, our kids are facing parali, the fogs created by this. Okay, smogs created, environmental danger in the sense of air pollution quality. Okay, throughout Delhi, it is the most dangerous city of India. Okay, and despite of that, we have to live. And as a result of that pollution, cancerous and brain related disease, which is a very harmful lungs related disease, all these things are happening. All these things are happening. And despite of the fact that this is a very dangerous stage, Delhi is a very dangerous city now, we are living here. We are uh, forced to live here because of our livelihood. Somehow we are living here. So we, if the is this, but at the same time, we have to see that during this lockdown, you might have seen the so many videos which you have flashed to your WhatsApp, or you might have seen on the YouTube or somewhere else. You know, find that many of the birds or the species which were moving on the roads, especially in Australia or some other European countries, it has been seen and it has come to news. Subham, am I right? Ria, Ayush, have you seen such videos? Ans, कि जो पक्षी हैं या पशु हैं, एनिमल्स हैं, वो सड़कों पर घूम रहे हैं फ्रीली. देयर इज नो फियर बिकॉज द ह्यूमन रेस वाज इनसाइड द हाउसेस. मनुष्य घरों में बंद था और वो फ्रीडम. और इसके अलावा क्या हुआ कि द एयर क्वालिटी, वी हैव नोटिस्ड इट इन दिल्ली इटसेल्फ, कि एयर क्वालिटी हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली. यू नो पॉइंट, द क्वालिटी ऑफ एयर हैज इंक्रीज्ड, एंड द रीजन इज दैट there was less vehicles on the private vehicles, public transport, okay, on the roads. And as a result of that, what happened? Environment has a natural ability, and environment has replenished the damage. अपने डैमेज को उसने कंट्रोल कर लिया. Get your point?
सो माय पॉइंट इज वंस अगेन, इस लेसन को पढ़ने का एकमात्र पर्सपेक्टिव ये है कि हम सरवाइव करें, जियो और जीने दो। महावीर स्वामी कहते थे जियो और जीने दो। ओके, और हमारे यहाँ जब देखो आप रिकॉल करो, दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आई ऑलवेज कोट विद फ्रॉम माय चाइल्डहुड। जब हम लोग गांव में थे और जब पूजा होती थी हमारे यहाँ, तो पंडित जी जो होते थे ना, वो क्या करते थे, वो लास्ट में आम का जो पल्लव, आम का जो लीफ होता है ना, उसको करते हैं आम का पल्लव, उसको लेके जल लेके और चारों तरफ छिड़कते थे। तो क्या कहते थे मंत्र, ओम पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति ध्यो शांति दिशा शांति वनस्पतय शांति औषधम शांति शांति रेव शांति शांति। मतलब क्या है कि पूरे इन्वायरमेंट की शांति की बात होगी। इन्वायरमेंट इज व्हाट, हम इन्वायरमेंट के डिफिनेशन को क्या पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट इज आवर सराउंडिंग सिस्टम। हमारे आसपास जो भी है, वट एवर वी आर एबल टू सी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। कुछ तो जैसे मान लो कि हम क्लासरूम में, हम अपने घर में, तो कमरे की चारों दीवारें इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, अगर हम क्लासरूम में चले जाते हैं, अपने स्कूल की बात करें, तो क्लासरूम हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। हम सी बीच पर चले जाते हैं, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सी बीच के पास, वो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो इन्वायरमेंट इज व्हाट, आवर सराउंडिंग सिस्टम। ठीक है, तो हम अपने आसपास, जैसे मैं यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, हमारा सराउंडिंग शांत है, क्लास में पढ़ा पाऊंगा, हमारा सराउंडिंग शांत होगा। बगल से चिल्ल पो 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 गाड़ियों की आवाज या कुछ और तरह के साउंड, बगल वाले क्लास में कुछ डिस्टरबेंस, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा? नो। इन्वायरमेंट मतलब क्या है, एक व्यक्ति, मैं अपनी बात करूं, अगर मैं शांत होकर पढ़ा पाऊंगा तो इसलिए क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट शांत है हमारे आसपास। ठीक है, इसको बड़े ही पैमाने पर बड़े सोचने की जरूरत है इस बात को, कि अगर एक पूरे इन्वायरमेंट में अगर शांति है, तभी एक इंडिविजुअल भी शांत है। ठीक है, और इंडिविजुअल शांत है तो इन्वायरमेंट, मतलब एक इंटर पर्सनल रिलेशनशिप की यहाँ बात हो रही है। ओके, चलिए, तो हम इस लेसन को हम पढ़ते हैं। इसके की पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, लेकिन हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी रीडिंग हो जाए, जिससे कि ये जो एसर्शन रीजनिंग की टाइप के जो क्वेश्चंस निकल कर आएंगे ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे। इंट्रोडक्शन से पहले एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट मुझे याद आ गया, सो आई विल जस्ट लाइक टू कोट दैट, नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड। आई एम जस्ट रिपीटिंग, नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। प्रकृति ने हमें वो सब कुछ दिया है हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नीड, आवश्यकता। ठीक है, प्रकृति ने हमें हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ दिया है। नेचर हैज प्रोवाइडेड एवरीथिंग फॉर आवर नीड बट नॉट फॉर आवर ग्रीड। लेकिन हमारी लालच का कोई अंत नहीं होता है, और हमारी लालच को पूरा करने का कोई इंतजाम इस प्रकृति के पास नहीं। इसलिए कहा जाता है हमारे यहाँ, लालच बुरी बला। ठीक है, with this positive note I am going to start this lesson. Good morning dear students, good morning. Silent class, are my class sleeping? Good morning. Good morning, sir. Why so only Arjun has a responsibility to speak? Good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ठंडक में इतनी ठंडक पड़ रही है कि लिप्स को ओपन करने में दिक्कत हो रही है। बोलो भाई, हंस भट्ट, you were a very vocal boy. Ankit, what happened to you? बोला था सर, हम्म मैंने गुड मॉर्निंग बोला था अभी। अरे गुड मॉर्निंग तो बोला था बेटा, लेकिन रिपीट होना चाहिए ना बार बार, कि गुड मॉर्निंग मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिस्पॉन्स होना चाहिए ना बेटा। शुभम, व्हाट इज हैपनिंग? चलो, चलिए, तो कौन पढ़ेगा? यस, वर्षा पढ़ो बेटा। वर्षा, स्टार्ट रीडिंग। वर्षा, डू इट फास्ट। वर्षा, यस सर। हाँ पढ़िए बेटा।
फास्ट रिस्पॉन्स, दूसरे बच्चे भी तैयार रहेंगे, ठीक है। गेट रेडी, चलिए रीड फास्ट। इन द अर्ली चैप्टर्स, यहां से पढ़ना है आपको। सर मेरे पास दूसरी बुक है। ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? पढ़िए, स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है। सर पेज नहीं दिख रहा वो वाला। हाँ, ऐसा क्या? चलो चलो, राहुल राणा, राहुल डू इट फास्ट, टाइम निकल जाएगा बेटा, जल्दी करेंगे आप लोग। राहुल गेट रेडी। सर अब दिख रहा है, पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, स्टार्ट रेडिंग। In the earlier chapters, we have discussed the main economic issues faced by the Indian economy. The economic development that we have achieved so far has come at a very heavy price, at the cost of environmental quality. As we step in, one minute. देखो, in the previous chapter we have studied about the various issues the economy is facing, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, हाँ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट का, एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। चाहे वो एनर्जी की बात रही हो, ठीक है, चाहे वो पॉवर्टी की बात रही हो, कुछ भी बात, दे आर द चैलेंजेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आपने देख लिया, ठीक है। लेकिन जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो किसकी कॉस्ट पर हो रहा है? वो एनवायरमेंट की कॉस्ट पर हो रहा है। सड़कें बन रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट। डैम्स बन रहे हैं, इकोसिस्टम पर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। ब्रिजेस बन रहे हैं, इकोसिस्टम पर अफेक्ट पड़ता है, चाहे नदियों का हो सिस्टम, चाहे कहीं का भी हो, पानी को रोका जाता है, फ्री फ्लो ऑफ वाटर नहीं होता है, तमाम तरह के एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर उनका बुरा असर पड़ता है। दैट पॉइंट दे आर टॉकिंग, ओके। चलिए आगे बढ़िए। as we step into an era of globalization that promises higher economic growth, we have to bear in mind the adverse consequences of the past development path on our environment and conscientiously choose a path of sustainable development. Yes, as you know that globalization 1991, हमारे लिए ग्लोबलाइजेशन मतलब एलपीजी की हम फिलहाल बात कर रहे हैं। जब से ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, free flow of goods and services, labor, capital was free, and as a result of that, there was boom in the many sectors. Okay, automobiles has increased, a lot of automobiles has increased, number of factories has increased, and as a result of that, the environment is damaging. You see, we got the jobs and all employment white collar, mic off कर लिए करो, ठीक है, white collar jobs वगैरह create हुए, but still it has affected the local environment as well as the global environment, because the local environment is a part of the global environment. Okay, proceed. Good, very good. To understand the unsustainable path of development that we have taken and the challenges of sustainable development, we have to first understand the significance and contribution of environment to economic development. With this in mind, this chapter is divided into three sections. The first part deals with the functions and role of environment. The second section discusses the state of India's environment. And the third section deals with steps and strategies to achieve sustainable development. Very good. To understand the unsustainable path of development means the unsustainable path, sustainable path, which indicates that development in such a way that not only the needs of the present generation but also the needs of the future generation is fulfilled. That is Mahavir Swami's concept, जियो और जीने दो, मतलब फ्यूचर जनरेशन भी ठीक रहे, हम भी ठीक रहे, ठीक है, हम दूसरे का भी सोचते हैं। We are not only thinking about ourselves, means we are not only the self-centered person, we are no more self-centered person, मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, ठीक है, हम सबके लिए सोचे, केवल अपने लिए नहीं सोचे। आज का मनुष्य क्या हो गया है, अपने लिए सोच रहे हैं, हम दूसरे के लिए, मतलब हम एनवायरमेंट के लिए, वो पेड़ पर रहने वाले पशु पक्षी जो भी है वो कैसे हैं, उनका क्या होगा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक जल में रहने वाली एक मछली, एक छोटा सा बैक्टीरिया जो है ना, अगर वो मरता है तो उससे जो लिंकेज है वो अफेक्ट होते हैं। जैसे आप अर्थ वार्म है,
अर्थवर्म का महत्व एक छोटा बच्चा नहीं समझ पाता है, लेकिन एक किसान से पूछो, एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से पूछो, तो वो बताएंगे कि वो अर्थवर्म क्या करता है। नीचे की मिट्टी को लेता है, ऑक्सीजनेटेड करता है मिट्टी को, ठीक है, ऊपर से नीचे मिट्टियों को लेकर आता है। मेरे पॉइंट, तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप एनवायरनमेंट को कुछ दे रहे हो तो एनवायरनमेंट भी आपको कुछ दे रहा है। आज तक जितने भी डेवलपमेंट हुए, आप कोई भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उठा के देख लो, दुनिया का कोई साइंटिस्ट नहीं है जो लैब में बनाकर और लैब में प्रोडक्शन कर ले और सबकी नीड्स को पूरा कर ले। It is the environment only which is providing us everything. But man has become so wild that they are not taking care of the environment. So it is an unsustainable path of development. Deforestation is an unsustainable path of development. Okay? So what we are supposed to do? We have to create awareness that environment is our गार्जियन, एक नेचुरल गार्जियन जिसको कहते हैं ना, जिसने सबका लाइवलीहुड दिया हुआ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है मदरलैंड, ये सब इन्वायरमेंट, प्रकृति की पूजा, ये सब कारण यही है कि दे आर द रियल प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन रेस, और उसको अच्छा करना जरूरी है। पॉइंट, थैंक्स गिविंग वहां होना चाहिए। तो विद दिस हमको माइंड, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द फंक्शंस एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट का काम क्या है और रोल क्या है एनवायरनमेंट का। आप कितना भी डेवलपमेंट कर लो, अगर आपने इस इथिक्स को अपने अंदर नहीं लाया, आगे आने वाली जनरेशन के अंदर नहीं डाला, तो हमारे ह्यूमन रेस जो है कि सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, द सेकंड सेक्शन डिस्कसेस द स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट, और भारत की पहला क्या है, फंक्शन एंड रोल ऑफ एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट का काम क्या है, ठीक है, और एनवायरनमेंट कैसे चीजों को एसिमुलेट करता है, उसके पास क्या कैपेसिटी है, उसकी हम चर्चा वहां करेंगे, ठीक है। देन इंडिया, ठीक है, सेकंड सेक्शन क्या कहता है कि स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में एनवायरनमेंट की स्थिति क्या है, एक्चुअली हाउ एनवायरनमेंट इज टुडे। एंड थर्ड सेक्शन डील्स विद द स्टेप्स एंड स्ट्रेटजीज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आपने महत्व भी समझ लिया, ठीक है, स्थिति भी समझ ली, अब फाइनल क्या बचता है, हम क्या करें टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। घर में पापा पैसा कमाते हैं, एक ही दिन में उड़ा नहीं देते हैं, मेरे भाई ऐसा नहीं करते हैं। आप पापा पैसा कमाते हैं, ऐसे नहीं कि मम्मी सारा पैसा अपनी साड़ी में परचेज कर लेती है ना। बेटी के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, बच्चे की फीस के लिए, बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, बिटिया रानी की शादी के लिए, ये सारा कुछ वो प्लान करती हैं। गेट पॉइंट, आगे गेट पॉइंट बोलो भाई। अरे फिर सो गए सर, Yes, sir. कमाल। Yes, sir. ओके, स्टार्ट कीजिए। Environment, definition, and function. Environment is defined as the total planetary inheritance and the totality of all resources. It includes all the biotic. Sir, ऊपर. Biotic and abiotic factors that influence each other. While all living elements, the birds, animals, and plants, forests, fisheries, etc., are biotic elements. Abiotic elements includes air, water, land, etc. Rocks and sunlight are all examples of abiotic elements of the environment. A study of the environment then calls for a study of the interrelationship between these biotic and abiotic components of the environment. Okay. Functions of the environment. One minute. ओके, तो हमने अभी तक ये पोर्शंस हमने यहाँ तक देख लिया था, एंड नाउ वी आर अप्रोचिंग टू एनवायरनमेंट डेफिनेशन एंड फंक्शंस। अभी तो डेफिनेशन तो हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट स्टिल एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लैनेटरी इनहेरिटेंस एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज। टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज मतलब क्या हुआ, जो हमने प्राप्त किया है, ठीक है, पहाड़ पठार प्लेटी जो भी है, नदी नाले जो भी है, ओके। तो व्हाट प्लेनेटरी इनहेरिटेंस मतलब इस प्लेनेट पर जो कुछ भी मिला हुआ है, और क्या मिला हुआ, जो कुछ भी आप आंख घुमाओगे वो सब कुछ चारों तरफ देखोगे वही तो मिला हुआ है, ठीक है। तो टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज, टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज कुछ हमने क्रिएट किया है, और क्रिएट क्या किया है,
क्रिएट तो उसी इन्वायरमेंट से लिया है। अगर घड़ा बनाया तो मिट्टी मिल गई, ऑर्गेनिक पॉइंट। और कुछ और बनाया, बड़े बड़े 2 कमरे के 4 कमरे के फ्लैट बना लिया और अपने को ऑलमाइटी समझने लगे, वो कहां से लिया? आयरन धरती से मिला, ठीक है, सीमेंट धरती से मिला, सब कुछ यहीं से मिला है। ऑर्गेनिक पॉइंट, ऑर्गेनिक पॉइंट। तो environment is defined as the total planetary inheritance and the total of all resources. It includes all the biotic, बायो लगा हुआ है, ठीक है, बायोटिक, बायो लगा हुआ मतलब जिसमें जान है, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी हम पढ़ते हो ना, बायोलॉजी, तो जिसमें जान है, बायोटिक एंड ए बायोटिक, ठीक है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। सब बायोटिक और ए बायोटिक, जिसमें जान है वो ही प्रभावित कर रहा है और जिसमें जान नहीं है वो ही प्रभावित कर रहा है। लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, हम तो बुद्धिमान लोग हैं, हम लोग को नहीं लगता है कि वो क्या पत्थर है, वो क्या असर डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, सबका असर हो रहा है, सबका एक दूसरे पे इम्पैक्ट हो रहा है। वो इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? जैसे आप पत्थरों की जंगलों में आप रहते हैं, शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं, और जब आप पहाड़ की खूबसूरत वादियों में, जम्मू कश्मीर में चले जाते हो, हिमाचल प्रदेश की वादियों में चले जाते हो, ऊटी उदगमंडलम ऊटी में चले जाते हो, तमिलनाडु या केरला साइलेंट वैली के पास चले जाते हो, या कोई सी बीच के पास चले जाते हो, तो वो आपको असर डाल रहा है। वो ए बायोटिक है, लेकिन आपके ऊपर असर डाल रहा है, आपके मन, आपके विचारधारा को बदल रहा है। तो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग। क्या कह रहा? इट इंक्लूड्स ऑल द बायोटिक and abiotic factors that influence each other, while all living elements, the birds, the animals and the plants, forests, fisheries etc. are biotic elements। ठीक है, अब देखो इसका असर ऐसे भी देखो, जब बचपन में थे तो आपके पेरेंट्स कहाँ लेके जाते थे? चिड़ियाघर, जू, पापा पापा चिड़ियाघर चलेंगे ना, है ना, तो आपके मदर, सब लोग, पूरा परिवार जाता था। कैसा लगता था? चाहते थे। अब बड़े हो गए हो, उस चिड़िया का महत्व क्या समझना है, उस मोर के डांस का क्या महत्व समझना है, जिसके मोर के डांस पर वो आप चाहने लगते थे। और आज भी जब मन उदास हो तो कभी प्रकृति के गोद में बैठने का प्रयास करो, तब आपको समझ में आएगा। वो अंकित से पूछो, जब वो अपने गांव जाता होगा तो खेतों की लहलहाती फसलों को जो देखता होगा तो कैसा लगता होगा। अभी मैं घर से आया हूँ, गांव से आया हूँ, कितना अच्छा लगा कि चारों तरफ सरसों के फूल, मेरे पॉइंट, उसमें बैठने वाली तितलियां और भौरे जो बैठ रहे हैं, वो जाके वो शहद बना रहे हैं। सोच लो कैसा एनवायरमेंट है, वो सब कुछ वहीं से हमको मिल रहा है। मेरे पॉइंट, तो बायोटिक और एबायोटिक सारे फैक्टर्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है। एबायोटिक एलिमेंट्स इंक्लूड्स एयर, वाटर, लैंड एक्सेट्रा, रॉक्स एंड सनलाइट आर all examples of abiotic elements of the environment. A study of the environment then calls for a study of the interrelationship। ये interrelationship है, this what interrelationship between these biotic and abiotic components of the environment। ठीक है, सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित है। तुम मेरा ख्याल रखो, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, ठीक है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा में, ठीक है, पॉइंट। वो ऐसा रिलेशनशिप है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलो, अब वर्षा की जगह अब थोड़ा सा अंकित राय, अंकित पढ़ेंगे बेटा। डू इट फास्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। अंकित, डू इट फास्ट बेटा। अंकित, अर्जुन पढ़ो बेटा। अंकित डिले कर रहे हैं। Yes, sir. Functions of the environment. The environment performs four visual functions. First, it Vital provides functions, okay? resources. Vital is very important। Vital का मतलब क्या होता है? Very important functions। तो 4 very important functions are what? ठीक है, ये हमारे 4 important functions। ओके, पढ़िए। It supplies resources. Resources here include both renewable and non-renewable resources. Renewable resources are those which can be used without the possibility of the resources becoming depleted or exhausted. Exhausted. That is, a continuous supply of the resources remains available. Examples of the renewable resources are the trees in the forest and fishes in the ocean.
Non-renewable resources, on the other hand, are those which get exhausted with extraction and use. For example, fossil fuels. Second, it assimilates waste. It sustains life by providing genetic and biodiversity. And fourth, it's also provide existing services like scenery, etc. The environment is able to perform these functions without any interruption as long as the demand of these functions is within its carrying capacity. This implies that the resources extraction is not about the rate of the regeneration of the resources, and the wastes generated are within the assimilating capacity of the environment. When this when this is not so, the environment fails to perform its third and vital function of Vital. life sustains, and this result in an environmental crisis. This is Crisis. right. This is the situation today all over the world. The rising population of the Okay, okay, okay. developing. 1 minute, 1 minute, 1 minute. Okay, okay. So we are here. Functions of environment. Environment का फंक्शन क्या है? बहुत सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, बट स्टिल, हाँ, फर्स्ट फंक्शन इज इट सप्लाइज रिसोर्सेज. इसको मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये तो आप देख लियो हो, एग्रो वगैरह बेस्ड इंडस्ट्रीज वगैरह की बात की, कहाँ से आता है ये आप समझ गए. ओके, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इट सेज. सेकेंड पॉइंट, फोर फंक्शन. सेकेंड पॉइंट, ओके, इट एसिमुलेट्स वेस्ट. जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसको अपने अंदर समाहित करने की क्षमता. ठीक है, जैसे नदियों में बहुत सारी चीजें डाली जाती है, बहुत सारा एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उस एयर पोल्यूशन को एनवायरमेंट का जो सिस्टम है, दैट इज मींस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड and that carbon dioxide is used by the plants to manufacture their food, to construct, they make अपना फूड बनाने के लिए वो यूज करते हैं, they use it, and ultimately उस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, supplies oxygen. Are you getting the point? So that is the assimilating capability. Third point, it sustains life by providing genetic and biodiversity. ठीक है, सस्टेन, लाइफ को सस्टेन करता, मतलब बचाए रखता है, लगातार जिंदगियां चल रही हैं, क्यों हो रही है, और बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी. मतलब जो जेनेटिक, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो जीन्स होते हैं, उस जीन्स और बायोडाइवर्सिटी को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज बायोडाइवर्सिटी. मतलब जो डिफरेंसेस हैं प्लांट्स लाइफ में, ये डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर ये इस डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी ऐसी है कि एक वन टाइप ऑफ प्लांट इज सपोर्टिव फॉर द अदर टाइप ऑफ प्लांट. अभी सोच लो, डाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करो, हाउ इट इज इंटरडिपेंडेंट डाइवर्सिटी. ठीक है, इन्वायरमेंट में ये सब हो रहा है. इन्वायरमेंट, मान लो कि मैंने फ्लावर का काम की चर्चा की, फ्लावर पर डिपेंड क्या है, वो जो मधुमक्खी है या इंसेक्ट्स हैं छोटे छोटे, वो उस पर डिपेंड है, उसको खाने वाले दूसरे उसको खाने, मतलब ये पूरा का पूरा जो चेन सिस्टम, जिसे फूड चेन जिसे कहते हैं ना, वो एक बना हुआ है. तो सस्टेन्स लाइफ. तो एक लाइफ दूसरे लाइफ पर, जैसे ग्रास, डियर, ठीक है, एंड डियर, टाइगर, दिस डिपेंडेंसी यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, तो इट सस्टेन्स लाइफ by providing genetic and biodiversity. Fourth point, it also provides aesthetic services like scenery, जिसकी चर्चा अभी हमने जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात की, and that is supplemented. Okay, next is the environment is able to perform these functions without any interruptions as long as the demand on these function is within its carrying capacity. मतलब जहां तक ये बर्दाश्त कर पाए. ठीक है, एक लड़का क्लास में डिस्टरबेंस कर रहा था, टीचर जहां तक बर्दाश्त कर पाए उसको शांत करने का प्रयास करता है. जब सीमाएं क्रॉस हो जाती हैं तब मजबूर होना पड़ता है, एंड सम अदर स्टेप्स दे हैव टू टेक. ओके, उसी तरह एक एनवायरनमेंट, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसकी भी अपनी कैपेसिटी है, उसका भी एक अपना टॉलरेंस लेवल है. इसको समझने का प्रयास कीजिए. कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, मास्टर का टॉलरेंस लेवल, एनवायरनमेंट का टॉलरेंस लेवल.
माता पिता का टॉलरेंस लेवल। आर गेट पॉइंट। कोई अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहता है, कोई अपने स्टूडेंट के साथ पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता है, कोई भी सिस्टम। ठीक है, तो इन्वायरमेंट की अपनी कैरिंग कैपेसिटी है। नदियों में आप गंदा डाल रहे हो, ठीक है, नदी बर्दाश्त कर रही है, लेकिन उसके कैपेसिटी से जब अलग हो जाएगा तो नदी का पानी रुक जाएगा, नदी के पानी का फ्लो रुकेगा, स्टेगनेंट वाटर नदी में जो बैक्टीरिया है, जो नदी में एक्वेटिक एनिमल्स है, वो मर लेंगे, नदी मर जाएगी। आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. चलिए, तो ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी की बात समझ में आ गई। दिस इंप्लाइज that the resources extraction is not above the rate of regeneration of the resources and the waste generation are within the assimilating capacity of the environment। मतलब गुल्लक समझते हो? कॉइन बॉक्स में पैसा डाल रहे हो तो वो भरता जा रहा है, एनवायरमेंट में पेड़ लगा रहे हो, वो एनवायरमेंट सप्लीमेंट हो रहा है। अगर कॉइन बॉक्स से पैसा निकाल रहे हो, खाली हो जा रहा है, तो मतलब अगर आप निकाल रहे हो तो कुछ डाल भी दो भाई, तो गुल्लक में हमेशा पैसा बना रहेगा। उसी तरह जैसे ग्राउंड वाटर टैप में ग्राउंड वाटर से निकालते जा रहे हो, क्या क्या ट्यूबवेल है, वेल है, जो भी है साधन पानी निकालने के, आपके घरों में तमाम पानी निकल रहा है, लेकिन उसको रिचार्ज नहीं कर रहे। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या सिखाया हमको? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये हमारे पूर्वजों की देन। इसी से अन्ना हजारे फेमस हो गए, उसी से वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र भैया फेमस हो गए। पॉइंट, वो उन्होंने पुरानी तकनीक जो हमारी पूर्वजों की थी उसको फिर फॉलो किया, और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट जहां से ग्रामीण जनसंख्या पलायन कर रही थी, दे आर एस्केपिंग फ्रॉम दैट एरिया, दे अगेन रिटर्न बैक टू दैट एरिया। आर गेट योर पॉइंट? सो दैट इज व्हाट, आप अगर ले रहे हो तो आप उसको वे भी, ठीक है, इसी पॉइंट को यहां लिखा गया। दिस इंप्लाइज दैट द रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन लेना इज नॉट अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द वेस्ट जनरेटेड आर विद इन द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। मतलब जितने तक वो अपने आप में उसको समाहित कर सकती है उतना ही वो हो। अगर वो वेस्ट ज्यादा क्रिएट होंगे बिकॉज ऑफ द ओवर यूज एंड अनजुडिशियस यूज, तो क्या होगा? वो इसकी कैरिंग कैपेसिटी से बाहर चले जाएगा और एनवायरनमेंट वही डैमेज हो जाता है। When this is not so, the environment fails to perform its a third and a vital function of life sustenance। मतलब जीवन को जीने देने की जो क्षमता होती है, ठीक है, वो स्थिति वो उसकी मरती जाएगी। That this results in the environmental crisis, और यही होता है एनवायरमेंटल क्राइसिस, और यही जिससे जन्म लेता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, melting of glaciers, rising of sea level, submerging of island countries and islands। Get it fine? और बहुत सारे कंट्रीज जो सी लेवल बढ़ने से डूब रहे हैं, नोरू और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो कि पानी के अंदर जाने की संभावना बढ़ रही है। जापान चिंतित है, अंडमान निकोबार, अपना वो क्या नाम है उसका, कावरत्ती जिसका कैपिटल है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, ये सारे लोग अब मेन लैंड केरला में जमीन परचेज कर रहे हैं, खतरे बढ़ रहे हैं। This is the situation today all over the world. The rising population of the developing countries and the affluent consumption and production standards of the developed world have placed a huge stress on the environment in terms of first two functions। ठीक है, ये स्थितियां क्रिएट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? पूरे वर्ल्ड में एफ्लुएंट कंजम्पशन, मतलब बिना सोचे समझे कंजम्पशन करना, ठीक है, लग्जरियस लाइफस्टाइल, लग्जरियस अनएथिकल अनसस्टेनेबल लाइफस्टाइल इज क्रिएटिंग। हम हमेशा वेस्ट की तरफ भागते हैं, जबकि हमारा जो सिद्धांत है ना, इतना बढ़िया सिद्धांत है यहाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। ये इसी सिद्धांत पर चल के पूरे एनवायरनमेंट की अच्छा हो सकती है और जो क्राइसिस है वो दूर हो सकता है। तो लास्ट स्टेंजा है, आपका टाइम हो चुका है लगता है, ठीक है। मेनी रिसोर्सेज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे रिसोर्स खतरे में पड़ गए हैं, एंड वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, मतलब एब्जॉर्प्शन उसकी कैपेसिटी है उससे बाहर चले गए,
Absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation. जो गिरावट आ रही है environment में, उससे बचने की जो क्षमता है, उसको समाहित करने की क्षमता है, ठीक है, जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको अपने अंदर एक्सेप्ट करने की क्षमता है. That is the absorptive capacity. Means the ability of the environment to absorb degradation. The result, we are today at the threshold of environmental crisis. The past development has polluted and dried up rivers and other aquifers, making water an economic good. और आज इसीलिए वाटर इकोनॉमिक गुड हो गया है, क्योंकि लोग बेचते हैं, लोग खरीदना पड़ता है. Besides the intensive and extensive extraction of both renewable and non-renewable, renewable मतलब जिसको रिप्लेनिश किया जा सके, जिसको नया जन्म दिया जा सके, जिसको जो एग्जॉस्टेबल नहीं होता है, non-renewable resources has exhausted some of these vital resources, and we are compelled to spend huge amount on technology and research to explore new resources. Added to this are the health cost of degraded environmental quality. ठीक है, decline in air and water quality. 70% of the water in India is polluted. My God, देख लीजिए, alarming situation have resulted in the increased incidence of respiratory and waterborne diseases. Very crystal clear these statements are there. Hence the expenditure on health is also rising. और यही कारण है कि हमारा स्वास्थ्य के ऊपर जो होने वाला खर्चा है वो बढ़ गया है. To make matters worse, global environmental issues such as global warming and ozone depletion. ओजोन का फॉर्मूला होता है O3. ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स बनके ओजोन बनते हैं, जो इन्वायरमेंट के ऊपर एक सराउंडिंग सिस्टम की तरह काम करता है. जो पैरावैगनी, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, वो जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डेंजरस होती हैं, उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जिससे हमारा ह्यूमन रेस या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बचा हुआ है. तो ये ग्लोबल वार्मिंग की जगह से उसमें छेद हो जाता है. एंड ऑल्सो ओजोन डिप्लीशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट्स फॉर द गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट के लिए मुश्किलें होती हैं, क्योंकि उस लेयर में उसको फिलअप करने के लिए हमको उस तरह के खर्चे भी करने पड़ेंगे. हाँ, हमको उस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करेंगे जहां लेस पॉल्यूशन हो, ठीक है. Thus it is clear that the opportunity cost of negative environmental impacts are high. The biggest question that arises, are environmental problems new to this century? If so, why? ठीक है, ये ये क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या environmental problem नया है? तो ये ऑफ कोर्स हमारे लिए नया है. इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्टकट में. इसलिए नया है कि पहले के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था और आज के दौर में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और पॉपुलेशन राइज की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को अनजुडिशियस वे में यूज कर रहे हैं. पहले का जो कॉन्सेप्ट था कि हम एनवायरमेंट, प्रकृति को हम प्रेम करते थे, हमारे यहाँ सेक्रेड ग्रोव्स होते थे, फॉरेस्ट होता था जहां पर लोग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते थे, उसमें प्लांट कटिंग अलाउ नहीं था. अभी भी जो विश्नोई है, एक केस आपने सुना होगा जो कि सलमान खान फंसे थे, वो ब्लैक बक का वाला जो केस था, ठीक है. तो उसमें यही था कि वो जो कम्युनिटी थी, विश्नोई कम्युनिटी, वो प्रोटेक्ट करते थे, उस एनिमल को मारती नहीं थी, और उसको मार दिया गया. उनके ये जो बिलीफ था, कोर बिलीफ था, उसके अगेंस्ट चला गया, वो कोर्ट में मामला चला गया. तो ये हमको इन्वायरमेंट में जो भी हमारी चीजें हैं इन्वायरमेंट में, उसको हमको प्रोटेक्ट करना होगा. देन ओनली इट इज अ गुड, अदरवाइज इट इज गोइंग टू अफेक्ट अस, ठीक है. हेंस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स डिड नॉट अराइज. हमको ये सब करना पड़ेगा जिससे कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़े नहीं. बट विद पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से. यस डियर स्टूडेंट्स, यस सर टाइम हो गया सर, लिंक आ ओके ओके ओके, चलो थैंक यू, ठीक है. इसको मैंने जितना भी मैंने पढ़ाया है, और ये जो पॉइंट है, ये जो छूटा है एक्चुअली नहीं है, बट रीडिंग का पार्ट मिसिंग हुआ है. हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरनमेंट. ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू. ओके डियर, ओके, सो वी कैन से बाय बाय. Thank you, नंदिनी, sir. करिश्मा, हिमांशु, हर्षित, सान्या, साहिन, yes, very good, you can leave.